Hello students and welcome to your English language class. Today we'll be reading chapter number 5 of your literature book, and the title of this chapter is Buck to the Rescue, and it has been written by Jack London. Now Buck here is the name of a dog. It's a pet dog of the writer, and he comes to rescue or to save the life of his master by putting his own life at stake. So let us read the story and get to know how and what happened to his master and how he rescued him. Now Buck was a magnificent sheepdog sold to men who lived in the city, in the icy north of America. These men were extremely cruel masters. Buck was beaten and starved and forced to obey them. One day when Buck had nearly dropped dead from exhaustion, he was rescued by an onlooker, John Thornton. Now Buck जो है वो एक शीप डॉग था जो कि जो लोग आईसी नॉर्थ ऑफ अमेरिका में रहते थे उन लोगों को बेचा गया था, एंड दोज मैन वर एक्सट्रीमली क्रूअल मास्टर्स. They used to beat him, they used to starve him, they never used to give him anything to eat, and they forced him to obey them. And one day when Buck almost died out of exhaustion, he was dead tired. At that time he was saved by an onlooker, a passerby, and his name was John Thornton. ठीक है, जॉन थॉर्नटन जो थे इन्होंने जो बक है उसकी ज़िंदगी बचाई और जो क्रूअल मास्टर्स के बीच में फंसा हुआ था वहाँ से उसको निकाल के लेकर आए. Now John Thornton was alone in the camp with only 2 dogs for company because he was recovering from frozen feet and frostbite. अब जॉन थॉर्नटन जो थे वो एक कैंप में उनके 2 डॉग्स थे उनके साथ रहते थे, और क्योंकि वो रिकवर कर रहे थे फ्रोज़न फीट से. आपने देखा होगा जो लोग नॉर्दर्न पोलर रीजन में रहते हैं उनको कभी कभी फ्रॉस्ट बाइट हो जाती. फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? जब आपके उंगलियों या पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से नमनेस आ जाती है या स्वोलन हो जाती हैं, तो दैट इज़ फ्रॉस्ट बाइट and frozen feet. So he was suffering from that and he was resting in the camp with his 2 dogs. John was still limping slightly when Buck came into his life. John was not able to walk properly. He was limping. Limping मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलना. Okay. When Buck came into his life, जब Buck को वो लेकर आए तो he was not able to walk properly. Together the 2 invalids, people who cannot move due to illness or disability. They were even John and Buck both were not able to walk properly. Okay, and so they were invalids at that time. So they sat on the river bank through the warm spring days, listening to the bird song and watching the sparkling water as they recovered. तो वो दोनों आराम से नदी के किनारे बैठ के वार्म स्प्रिंग डेज में वहाँ पे बैठ के जो चिड़िया होती हैं उनकी आवाज़ें सुनते रहते थे और जो स्पार्कलिंग वाटर है नदी का उसको देखते रहते थे. एंड दे व्हेन दे वर रिकवरिंग, बक वॉज एबल टू रेस्ट एट लास्ट आफ्टर सम 3000 माइल्स ऑफ ट्रैवल. बक को वो जहाँ से छुड़ा कर लाए थे वहाँ से ये कैंप कितनी दूर था? ऑलमोस्ट 3000 माइल्स. सो बक वॉज एबल टू रेस्ट एट लास्ट. अब बक जो है यहाँ पे जॉन थॉर्नटन के साथ he was able to get some rest. He regained his lost weight gradually and his coat turned glossy once more. और उसने जितना भी weight lose किया था he regained it back and gradually means slowly. और जो उसका जो fur था his coat, that also turned glossy once more because now he was recovering and he was regaining his weight. Skeet, a little Irish dog. अब जो जॉन के पास ऑलरेडी 2 डॉग्स थे, उसमें से एक का नाम था स्कीट एंड इट वॉज अ लिटिल आयरिश डॉग. हैड द डॉक्टर ट्रेट. डॉक्टर ट्रेट मीन्स ही हैड द नेचुरल क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स. सो शी केयर्ड फॉर अदर डॉग्स और पीपल हु वर इंजर्ड. So she had that
doctor quality. Trait means quality, which some dogs possess. Now she washed and cleaned Buck's wounds like a mother cat washing her kittens. अब जैसे एक मदर डॉग जो है अपने किटन्स की या अपने पपीज़ को जैसे वो लुक आफ्टर करते हैं, वैसे ही शी यूज टू लुक आफ्टर Buck. At first too weak to object, Buck soon came to expect and enjoy her attention. पहले तो वो इतना ज़्यादा वीक था कि वो कुछ ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाता था, एंड लेटर ऑन ही स्टार्टेड इन्जॉइंग हर अटेंशन. उसको अच्छा लगने लग गया कि जो स्कीट है, जो आयरिश लिटिल डॉग है, वो उसकी इतनी केयर करती है. Now Nig, Thornton's other dog, was friendly too. और जो दूसरा डॉग था उसका नाम था निग, और वो भी बहुत ही फ्रेंडली था. Buck was amazed at their friendliness and lack of jealousy. और बक को बड़ा अजीब लगता था कि वो इतने फ्रेंडली और बिना किसी जेलसी के कैसे हो सकते हैं. बिकॉज मे बी उसने जितने भी डॉग्स देखे होंगे, दे वर वेरी मीन एंड दे वर वेरी सेल्फिश. सो ही वॉज काइंड ऑफ अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड at their behavior, friendly behavior. Maybe their master's kindness had rubbed off on them too. अब जो उसे लगता था कि जो उनके मास्टर हैं जॉन, उनकी काइंडनेस की वजह से वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं. रब्ड ऑफ मतलब दे वर ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड because of their master's kindness, and they have become like them, become like him. Now, unlike other men, he looked after their needs, not as if it was a duty, but as if he cared for them like his children. और जो जॉन थे उनकी वो इतने ज़्यादा अच्छे थे. ही यूज्ड टू लुक आफ्टर देम एज हिज ओन चिल्ड्रन. और वो इसको एक ड्यूटी की तरह नहीं लेके चलते थे, बट उनको लगता था जैसे ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये तीनों डॉग्स उन्हीं के बच्चे हैं. एंड ही यूज्ड टू केयर फॉर देम लाइक अ फादर. ही नेवर फॉरगॉट अ काइंडली ग्रीटिंग और अ चीयरिंग वर्ड. वो हमेशा बहुत प्यार से उनसे मिलते थे और हमेशा चीयर अप करते थे. ही डिड नॉट माइंड रॉम्पिंग. What do you mean by romping? Running around in a happy and lively way. He used to play and he used to run along with them. He used to play ridiculous games with them. Buck knew for the first time in his life what it was to love and be loved by a man. अब बक को पहली बार लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिली थी to love someone and to be loved by someone. इससे पहले उसने कभी इस फीलिंग को महसूस नहीं किया था. All of Buck's pent up feelings. Pent up means जो अभी तक उसने कभी एक्सप्रेस नहीं की थी, अभी तक स्टोर करके रखी हुई थी, अभी तक हेल्ड अप करके रखी हुई थी. द फीलिंग्स ऑफ लव नाउ सीम टू फाइंड एक्सप्रेशन. अब फाइनली ही गॉट अ वे टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ऑफ लव एंड इमोशन. नाउ बक्स लव फॉर थॉर्नटन वॉज शोन इन अडोरेशन. और जो बक के लिए लव था थॉर्नटन का, वो अडोरेशन. अडोरेशन मीन्स डीप अफेक्शन के थ्रू वो दिखाता था. ही वेंट वाइल्ड विद हैप्पीनेस व्हेन थॉर्नटन पैटेड हिम. और जब भी थॉर्नटन उसको प्यार से सहलाते थे, उसके सर पे हाथ फेरते थे, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था. बट अनलाइक स्कीट और निग, ही वुडंट आस्क फॉर अफेक्शन. लेकिन वो कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं करता था एज इफ ही सीकिंग अफेक्शन, जैसे कि वो चाह रहा हो कि वो उसके पास आए और उसको प्यार करें. बट he used to like it whenever he used to pat him or whenever he used to show affection to him. Now this was not just because Thornton had saved his life. He was the ideal master, caring and affectionate. अब ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि थॉर्नटन ने उसकी लाइफ बचाई थी, बट वो एक आइडियल मास्टर थे. हर एंगल से, हर वे से वो बहुत ही अच्छे थे. He was very caring and very affectionate. He had a way of taking Buck's head roughly between his large hands and resting his own head on Buck's. वो अपने दोनों बड़े हाथों से उसके सर को पकड़ते थे, बक को, और अपना हेड उसके हेड से मिलाते थे या उसके ऊपर रख देते थे, just to show his affection. Then he would shake Buck's head back and forth. और फिर वो जैसे हम बेबी के सर को पकड़ के हिलाते हैं ऐसे आगे पीछे, वैसे वो उसको करते थे. His terms of affection would be you ugly old monster or you villain of a dog. और वो हमेशा उसको प्यार से क्या बोलते थे, you ugly old monster, कि तुम पूरे बहुत ही गंदे बुरे राक्षस हो, या you villain of a dog. ठीक है.
एंड बक डिलाइटेड इन देम, और बक जब भी ये वर्ड सुनता था तो उसे बड़ी खुशी होती थी। एंड बक रिटर्न दिस एक्सप्रेशन ऑफ लव इन हिज ओन वे, और बक जो है अपना प्यार कैसे दिखाता था, ही वुड टेक थॉर्नटन्स हैंड इन हिज माउथ एंड बाइट इट, को अपने मुंह में पकड़ के और काट लेता था। एंड जस्ट एज बक अंडरस्टूड ओथ्स एज लव वर्ड, ओथ्स हियर मीन्स जो भी वो बैड वर्ड्स या जो भी कर्स अब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज़ करते थे वो उसको लव वर्ड समझता था, वैसे ही थॉर्नटन जो है उसकी बाइट को एक करेस या एक लविंग टच की तरह कंसिडर करते थे। इन फैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर हिज रेस्क्यू बक डिड नॉट लाइक टू लेट जॉन आउट ऑफ हिज साइट। अब काफ़ी टाइम हो गया था जब उसने जॉन ने उसकी जान बचाई थी, बट स्टिल जब भी जॉन उसकी आंखों से ओझल होते थे उसको बहुत डर लगता था। इवन एट नाइट इन हिज ड्रीम्स ही फेल्ट ही वुड लूज़ हिम, और रात को सपने में भी उसे लगता था कि कहीं वो अपने मास्टर को खो ना दे। लाइक हिज प्रीवियस मास्टर्स हुम ही हैड नॉट इवन लव्ड, जो उसके पहले मास्टर्स थे उनको भी उसे खोने का डर था, जबकि वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते थे तब भी वो डरता था। और अब तो जॉन उसको इतना पसंद करता है, इतना प्यार करता है, ही सो अफेक्शनेट एंड केयरिंग, सो नाउ ही इज़ मच मोर scared to lose him. At such times he would get up and crawl in the cold to the opening in the tent to listen to the sound of his master's breathing. और वो बीच बीच में उठ के अपने मास्टर की आवाज़ को, उसकी सांस लेने की आवाज़ को सुनता रहता था, just to check on him that whether he is there or not. Despite this great love for Thornton, Buck was still a creature of the wild and could steal and act with great cunning. He bore the scars of many fights with fierce dogs. थॉर्नटन के लिए बहुत ज़्यादा उसके दिल में प्यार था, अफेक्शन था, बट स्टिल बक वॉज अ वाइल्ड एनिमल एंड ही कुड स्टील एंड एक्ट विद ग्रेट कनिंग, और वो चोरी कर सकता था और बहुत ही चालाकी के साथ काम कर सकता था। और उसके बॉडी पर बहुत सारे ऐसे स्कार्स थे जो कि जब उसने बहुत ही ख़तरनाक डॉग्स के साथ फाइट की थी उससे उसे मिले थे। ठीक है, ऑल दो स्कार्स, ही हैड ऑल दो स्कार्स ऑन हिज बॉडी। ही कुड बी मर्सीलेस विद स्ट्रेंज डॉग्स, और जितने भी अनजाने डॉग्स थे जिनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो जाता था। मर्सीलेस मीन्स विदाउट एनी मर्सी और being very rude and very unkind. Recognizing that no mercy could be shown under the law of club and fang. The law of club and fang here means Buck had been trained to fight with other dogs when commanded to. If not, he would be beaten severely. जो उसके पहले मास्टर्स थे, प्रीवियस मास्टर, दे यूज टू बीट हिम इफ़ ही refused to fight with other dogs when they command him to. So he has become like that. It was only Thornton that held him. थॉर्नटन ने उसको थोड़ा काम होना सिखाया था। ऑल अदर मैन डिड नॉट मैटर, बाकी का और कोई भी मैटर नहीं करता था बक के लिए। व्हेन हैंस एंड पीट थॉर्नटन्स पार्टनर्स रिटर्न, बक ओनली टॉलरेटेड देम फॉर हिज सेक। और जब उसके जो कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे, थॉर्नटन के पार्टनर्स थे, हैंस एंड पीट, जब वो वापस आते हैं तो बक उनको सिर्फ इसलिए टॉलरेट करता है, इसलिए सहन करता है क्योंकि वो थॉर्नटन के पार्टनर हैं, दैट्स ऑल। इन द ऑटम ऑफ द ईयर बक सेव थॉर्नटन्स लाइफ। अब जब ऑटम का सीज़न चल रहा होता है तो बक ने थॉर्नटन की लाइफ बचाई होती है। Thornton and his partners were taking a long narrow boat down a stream that led to a waterfall. Now एक बार की बात है कि थॉर्नटन अपने पार्टनर्स हैंस एंड पीट के साथ एक लॉन्ग नैरो बोट पर एक स्ट्रीम, एक छोटी नदी में एक वाटरफॉल के पास जा रहे होते हैं। सडनली थॉर्नटन गॉट थ्रोन इनटू द वाटर। अब जब जैसे कि हम रिवर राफ्टिंग में जाते हैं तो एकदम से जो रिवर करंट है वो बहुत तेज़ होगा, तो थॉर्नटन जो है एकदम से अपनी बोट में से उछल के पानी में गिर जाता है एंड वॉज कैरिड डाउन स्ट्रीम टू ऑलमोस्ट सर्टन डेथ। और वो पानी के साथ बहते बहते काफ़ी दूर चला जाता है एंड ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। बक डाइव्ड इनटू द स्ट्रीम एट वंस एंड पुल्ड थॉर्नटन आउट ऑफ द वाटर। और बक तभी के तभी स्ट्रीम में कूदता है और थॉर्नटन को बाहर निकालता है खींच के। When he felt Thornton grasp his tail, he began swimming towards the bank with his splendid strength. और जब बक फील करता है कि थॉर्नटन ने उसकी टेल को पकड़ लिया है तो वो स्विम करना शुरू करता है नदी के किनारे की तरफ, अपनी जितनी भी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, हिम्मत होती है, उससे। बट द पुल ऑफ द डाउनवर्ड करंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग एंड जॉन न्यू दैट हेडिंग फॉर द शोर वॉज इम्पॉसिबल।
वो जितनी भी कोशिश करता है लेकिन वो जो रिवर करंट है या डायरेक्शन ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसे लगता है कि वो किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। जॉन को लगता है कि किनारे तक बक जो है नहीं पहुंच पाएगा। ही क्लच्ड ऑन टू अ रॉक फॉर डियर लाइफ एंड शाउटेड अबव द रोर ऑफ द वाटर। तब जॉन क्या करता है, वहाँ पे एक छोटी सी रॉक होती है तो उसको वो कस के पकड़ लेता है और फिर वो बक को ऑर्डर करता है दैट गो बक गो, कि तुम शोर तक पहुँचो, ठीक है, तुम किनारे तक पहुँचो। When Buck heard his master's voice, he raised his head above the water and obediently swam towards the bank. अब बक जैसे ही अपने मास्टर की आवाज़ सुनता है, जॉन की आवाज़ सुनता है, वो अपना हेड जो है पानी के ऊपर निकालता है और बड़े ही अच्छे ओबीडियंट बच्चे की तरह किनारे की तरफ तैरना शुरू कर देता है। हैंस एंड पीट ड्रैग्ड हिम अशोर। हैंस और पीट उसको खींच के, हैंस और पीट जो हैं बाहर होते हैं, किनारे पे होते हैं, तो वो उसको खींच के, ड्रैग मतलब खींचना, वो ड्रैग करके उसको शोर तक, किनारे तक लेकर आते हैं। देन दे टाइड अ रोप अराउंड बक्स नेक एंड शोल्डर्स एंड बैक ही वेंट इनटू द वाटर। और वो एक रस्सी बांधते हैं बक के नेक और शोल्डर्स पे और उसको वापस पानी में भेजते हैं। नाउ रिस्किंग हिज लाइफ एंड मेकिंग 2 अटेम्प्ट्स ही फाइनली मैनेज टू रीच थॉर्नटन एंड गेट हिम बैक टू सेफ्टी। अब अपनी जान को खतरे में डाल के जो बक है वो 2-3 बार अटेम्प्ट करता है और फाइनली वो थॉर्नटन तक पहुंच जाता है और उसको खींच के सेफ जगह तक ले आता है, विद थॉर्नटन क्लिंगिंग डेस्परेटली टू हिम एज ही पुल्ड। और थॉर्नटन ने उसको कस के पकड़ा हुआ होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो वो भी बह जाएगा पानी में। सो थॉर्नटन, हु हिमसेल्फ वॉज बैडली हर्ट, वेंट केयरफुली ओवर बक्स बॉडी। थॉर्नटन जो खुद उसको काफ़ी चोट लग गई होती है, वो बक को पकड़ के बाहर तक आता है। व्हेन ही फाउंड 3 ब्रोकन रिब्स ही अनाउंस्ड। और जब वो देखता है उसकी 3 रिब्स जो हैं वो टूट गई हैं, तो वो कहता है दैट सेटल्स इट, वी कैंप राइट हियर, कि हम और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, हम यहीं पर अपना कैंप लगाएंगे और यहीं पे रेस्ट करेंगे। एंड कैंप दे डिड टिल बक वॉज वेल इनफ टू ट्रैवल। और वहीं पर वो रेस्ट करते हैं जब तक बक और वो खुद ठीक नहीं हो जाता। Now Buck became famous for this exploit in all of Alaska. एक्सप्लॉइट, यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब है हीरोइक अचीवमेंट। अब जो इसने किया होता है इट्स नॉट लेस देन अ हीरोइक अचीवमेंट फॉर अ डॉग। सो ही बिकेम फेमस इन ऑल ऑफ अलास्का, और वो अलास्का में काफ़ी फेमस हो जाता है और हर कोई उसके बारे में बातें करता है दैट हाउ अ डॉग सेव्ड हिज मास्टर्स लाइफ बाय पुटिंग हिज ओन लाइफ एट स्टेक। अपनी खुद की जान को खतरे में डाल के कैसे उसने अपने मास्टर की लाइफ को बचाया होता है, ठीक है। सो दिस स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम द कॉल ऑफ द वाइल्ड। इट्स अ बुक रिटन बाय जैक लंडन। वहाँ से ये शॉर्ट थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. इफ नॉट, you can ask me in the group. And here's your homework. You have to write down all the word meanings and question answers in your fair notebook, and you have to submit your work by 3 p.m. tomorrow. Thank you for watching this video.